بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، یہ جو میرا چینل ہے اس پر میں آپ کے ساتھ بہت سی ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے کی شیئر کرتی ہوں جو آپ کے لیے سبق آموز بھی ہوں، آپ کو سیکھنے کو بھی ملے۔ آج یہ کہانی جو ہے میرے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ایک بھائی نے، ملک صاحب ان کا نام ہے، پورا نام میں نہیں بولتی، اور یہ عرصہ دراز سے مقیم ہے یو ایس اے میں، اور ان کی آپ کہیے کہ اب اولاد پہ اولاد کی اولاد بھی جو ہے وہ یو ایس اے میں ہے، ماشاء اللہ 70 سال ان کی عمر ہے۔ اور انہوں نے اپنی کہانی جو ہے میرے ساتھ شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہانی میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں، باقاعدہ انہوں نے مجھے میل کی کہ لوگ جو ہے اس سے کچھ سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس جنریشن سے میں تعلق رکھتا ہوں، جس دور کا میں ہوں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑی غربت میں پالا تھا۔ ہمیں پالتے ہوئے وہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے تھے اور سکھاتے تھے، روٹی کا ایک نوالہ کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ہم تمہیں روٹی کا نوالہ جب کھلا رہے ہیں تو تم نے یہی روٹی کے نوالے آگے اپنے بھائی بہنوں کو بھی کھلانے ہیں۔ اور اسی تربیت کے ساتھ ہم بڑے ہوئے تھے۔ ہمیں احساس تھا کہ ہم نے اگر ہم کچھ بن گئے تو ہم نے اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ وہ کہتے کہ غربت ہمارے گھر میں بہت تھی، اور میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، میں پڑھتا گیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یعنی کہ شہر بھی گیا پڑھنے کے لیے، وہاں پر اسکالرشپس ملے، اور پھر میں نے اپنی تعلیم ختم کی، اور کوئی اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ مجھے نوکری بھی بہت اچھی مل گئی، ایک آئل کمپنی میں مجھے جاب ملی، اور ایک دم سے ہمارے حالات جو ہے بہتر ہونے شروع ہوئے۔ میں نے فوراً ہی اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجنے شروع کیے تاکہ ان کے گھر کے حالات اچھے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے اپنے پاس بلا لیا، اور اس کو بھی پڑھانے کا میں نے جو ہے ایک ذمہ داری جو ہے اپنے سر لی۔ اس کے علاوہ بھی گھر میں جو بھی پڑھنا چاہتا تھا میں نے کہا کہ سب پڑھیں، آگے بڑھیں، اور اسی طرح سے ہم اپنی غربت کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی سمجھدار تھا اور پڑھائی لکھائی میں اچھا تھا، اور وہ بھی آگے بڑھا اور اس نے ماسٹرز کیا، اور اس کو بھی اچھی جگہ نوکری مل گئی، اور اس طرح سے ہمارے خاندان کے جو ہے دن بدلنا شروع ہو گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے اور ہماری ایک بہن تھی۔ میرے اسی طرح کر کے باقی جو 2 بھائی تھے انہوں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا، ان میں سے ایک فوج میں چلا گیا اور دوسرا جو ہے وہ پولیس میں چلا گیا، اور یوں ہمارے گھر کے حالات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع کیا۔ ان زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ پڑھائی کی بڑی ایک ویلیو تھی، اور لوگوں کو جاب بھی مل جاتی تھیں۔ اب تو یہ بڑا مسئلہ ہے ایک، لیکن کیا کیا جائے، پھر بھی مل جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جابس نہیں ملتی، لیکن مشکل بہت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے 4 بھائی اور ایک بہن تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بہن ہے ان کی شادی جو ہے جب میں پڑھا تھا تو انہی دنوں ان کی شادی ہمارے رشتہ داروں میں ہو گئی تھی، چونکہ ہم اتنے آسودہ حال نہیں تھے، تو جہاں اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی اتنے کوئی آسودہ حال نہیں تھے، اور میری بہن جو ہے اس کے شوہر جو ہیں وہ غریب تھے، اور بس ان کا وہی گزر بسر تھا جس طرح کہ میرے ماں باپ کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے حالات بہتر ہونے شروع ہوئے تو مجھے اپنی بہن کے لیے بھی بڑا دکھ محسوس ہوتا تھا، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنی بہن کے لیے کچھ کروں۔ اسی دوران میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو باہر جانے کا موقع ملا، اور انہوں نے باہر کے لیے اپلائی کیا۔ جب وہ باہر چلے گئے تو حالات اور بہتر ہوئے، اسی اسنا میں ان کا رشتہ بھی ہوا، ان کی شادی ہوئی، ان کے ہاں بچے ہوئے، اور وہ ایک آسودہ حال زندگی وہاں گزارنے لگے۔ لیکن ان صاحب نے اپنے جو خاندان ہے اس کا بہت خیال رکھا، اور اپنے بھائیوں کو جب بھی ضرورت پڑتی انہیں پیسے بھجواتے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی بہن کے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ان کی بہن کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، تو ان 2 بیٹیوں کی شادیوں کے لیے انہوں نے، جب بچے ذرا بڑے ہوئے، ان کی شادیوں کے لیے انہوں نے پیسے دیے، کیونکہ بہن کی شادی کافی پہلے ہو گئی تھی، بچیاں بڑی ہو گئی تھیں، ان کے جہیز، ان کی اچھی جگہ شادیاں کرائیں تاکہ آگے وہ آسودہ حال ہو۔ اب جو 2 بیٹے تھے وہ پڑھائی لکھائی میں، ایک بیٹا تو اچھا تھا، وہ پڑھا تھا، اس نے FSC میں اچھے نمبر لیے، تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ اس کو تم میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دو، اور میں جو ہوں اس کو یہاں پر پڑھاؤں گا بھی، اور یہ اچھی تعلیم حاصل کر لے گا اور زندگی میں آگے نکل جائے گا۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے 2 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ اب ان کے جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک بیٹی کا رشتہ بھی ان دنوں طے ہو رہا تھا، وہ شادی میں اس کی تیاری میں بھی مصروف تھے، ساتھ ہی بہن کو بھی کہا کہ بیٹے کو بھی بھیج دو۔ اب بہن جو ہے اس نے بھی غنیمت جانا، ظاہر سی بات ہے، ایک اچھی آفر تھی، اور بھائی کچھ کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کو وہاں پڑھنے لکھنے کے لیے اس کی ارینجمنٹ کی، اور اس کو وہاں پڑھائی میں لگا دیا۔ اب جو بہن کا دوسرا بیٹا تھا وہ ذرا پڑھائی شڑھائی میں بیکار تھا، ذرا آوارہ سا تھا، اس کی ماں کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی۔ اب اسی بھائی نے اس بہن کے کہنے پر اس کے لیے گاڑی وہاں سے پیسے بھیجے کہ گاڑی اس کے لیے خرید لو، وہ آن لائن کیا یہ وہ شروع کر لے، کیونکہ پڑھائی لکھائی تو اس نے کی نہیں، تو چلو اس کی زندگی کوئی بہتر ہو جائے۔ اب اس کی بہن جو ہے اپنے بھائی کی بڑی شکر گزار ہوتی ہے، اور اپنے اس بیٹے کو گاڑی خرید کے دیتی ہے، اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ آن لائن ٹیکسی چلانے لگتا ہے، اور گزر بسر اس کا بھی کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکا جو ان کے پاس وہاں باہر گیا تھا ان کے گھر میں تو رہتا ہے، اور اسی گھر میں رہتے ہوئے وہ پڑھائی جاری رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے، بیٹی اس وقت غالباً
8th ग्रेड 9th ग्रेड में थी, और साथ ही साथ ये बच्चे बड़े हो रहे थे कि घर में रहते हुए शायद एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। इस चीज़ का अंदाज़ा जब उनको हुआ और उनकी वाइफ़ ने जब ज़िक्र किया, दरअसल उनकी वाइफ़ ने तो ये ज़िक्र किया कि आप अपनी बहन के बेटे को तो ले आए हैं, लेकिन इनके घर में ज़रा पर्दा और नमाज और कुरान इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम होता था। तो वो कहते हैं कि जब मेरी वाइफ़ ने ये मुझे कहा कि ये कोई मुनासिब नहीं है कि आप अपने भतीजे को इधर तो ले आए हैं, लेकिन आपकी बेटी है और अब बच्ची जवान हो रही है, तो मुनासिब नहीं है कि एक ही घर में लड़का भी हो और इस तरह से। तो वो कहते हैं कि मुझे पहले तो नागवार गुजरा, लेकिन बाद में मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि भली मान बात तो सही कर रही है, ऐसा तो हमें भी कहा गया है, इस्लाम में इस चीज़ की एहतियात करने की भी कहा गया है, हुक्म दिया गया है। लेकिन वो लड़का इतना अच्छा था और इतनी नज़रें नीचे करके बात करता था कि मेरा कभी इस तरह से ध्यान नहीं किया। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया और पढ़ता गया और उसके नंबर्स अच्छे आते गए, तो मेरे भी जहन में आया कि क्यों ना मैं इसका रिश्ता अपनी बेटी के साथ ही कर दूँ। बेटी से जब पूछा तो बेटी ने भी अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उसका अपनी बेटी से मंगनी कर दी, और उसके बाद उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, तो फिर मैंने अपनी बेटी की उससे शादी कर दी। अब वो कहते हैं कि मेरा एक बड़ा बेटा जो था वो शादी करके कनाडा चला गया, उसको वहाँ पे एक अच्छी जॉब ऑफ़र थी, जबकि दूसरा बेटा जो था उसकी बीवी हमारे घर में ही साथ रहती थी, और मैंने अपनी बेटी को और अपने दामाद को जो है एक और अलग घर ले दिया, और वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम इस चीज़ का घर में एहतमाम करते थे कि घर में एक सिस्टम होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बच्चा हमारे दरमियान ही पला बढ़ा था, तो हमें इस चीज़ पर एतराज़ तो नहीं था, लेकिन मेरी बेटी जो है वो चाहती थी अलग रहना, बेटा बल्कि दामाद नहीं बेटी चाहती थी, तो हमने उसको अलग कर दिया। अब वो कहते हैं कि वहाँ पर जो मेरा बहन का दूसरा बेटा था, उसकी वहाँ पे शादी हुई थी, उसके बच्चे थे, लेकिन उसके हालात बहुत ही बुरे होते जा रहे थे। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा कि इसको भी कोई वहाँ पर एडजस्ट कराए ताकि इसकी ज़िंदगी को बेहतर हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि किसी तरह से करके उसको यहाँ पर बुला लिया। अब जब यहाँ पर बुला लिया, तो वो यहाँ पर इधर उधर छोटी छोटी नौकरियाँ तो करता रहा, लेकिन उसके अभी तक यहाँ पर जो कागजात हैं और जो परमानेंट होने का स्टेटस था, उसके लिए कुछ हो नहीं सकता था, यहाँ तक कि उसकी किसी ऐसी लड़की से शादी होती जिसकी वहाँ पर कोई नेशनैलिटी होती या कोई इस तरह का मामला होता। अब ये जो इनका बेटा है, एक बेटा जो घर पे था और जिसकी बीवी जो है वो भी घर पे थी, वो जो बेटा है उसको किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जो है उसकी पोस्टिंग होती है, उसको वहाँ पे रहना पड़ता है, लेकिन वो बीवी को यहाँ घर छोड़ के जाता है कि यहाँ पर ही रहेगी और यहाँ पर अपने आराम से रहेगी। उसके यहाँ बच्चे की विलादत भी मुतवक्के थी, तो उसने कहा कि ये इसके लिए बेहतर है कि यहीं पर है। अब वो बेटा उनका जो है दूसरे शहर चला जाता है, और यहाँ पर इनकी जो बहन है उसका जो बेटा है वो यहाँ पर आकर इनके साथ रहना शुरू कर देता है। अब जाहिर सी बात है, उनके जहन में तो ये बात कहीं दूर दूर तक भी नहीं आती कि कोई ऐसी ऐसी बात होगी। बहू जो है वो पर्देदार भी थी और वो चीज़ों का ख्याल भी रखती थी, लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि वो लड़का आके अब इनके घर में रहता था, दिन रात यहीं पर रहता था, और उस लड़की का ख़ावंद जो है वो दूसरे शहर में था। बच्चे की विलादत भी हो गई, उसके बाद वो शौहर उसका आता जाता भी रहा। अब ये लड़का जो है ये जगह जगह जॉब करता था, और इसको कोई परमानेंट जॉब भी उस तरह से नहीं मिल पा रही थी, ना इसके परमानेंट होने का कोई स्टेटस नज़र आ रहा था। अब इसके गंदे जहन में पता नहीं कहाँ से क्या गंद आया या क्या हुआ। ये वैसे भी थोड़ा आवारा सा मशहूर था अपने इलाके में, ये बात उसके मामू को तो पता ना थी। शायद वो कहते हैं मुझे पता होता तो मैं इसको कभी भी अपने घर में ना रखता। अब वो कहते हैं कि इंसान को अपने घर में जहाँ जवान बेटियाँ हों, बच्चियाँ हों, वहाँ पर चाहे सगी बहन का बच्चा हो, कोई भी हो, किसी को ला के नहीं रखना चाहिए। अब वो उसकी वजह बताते हैं कि आगे उनके घर में हुआ क्या। वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था, लेकिन ये नौजवान जो है ये अपने जहन में एक प्लान बना रहा था। हमारी जो बहू थी वो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी और एक आप कह लीजिए कि एक अच्छे ख़ानदान से थी, और उसके नाम पर अपने घर थे, अपनी गाड़ी थी, और एक अच्छी समझदार लड़की थी, और वो लड़की जो है इसकी नेशनैलिटी भी थी। अब इसके जहन में न जाने ये कहाँ से आया कि शायद इसका मियाँ जो इधर नहीं है, और कई बार ऐसे हुआ कि मियाँ बीवी में एक दो बार लड़ाई होगी फ़ोन पर, ये कहीं रोती रही, घर में ये बैठी थी और ये लड़का जो है ये भी घर पे था। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा गुड लुकिंग नौजवान था। इस नौजवान ने हमदर्दी जो है उससे जतानी शुरू कर दी, और न जाने इसके जहन में ये कहाँ से एक ख़्याल आ गया कि मैं इसको किसी तरह से अगर अपने तरफ राग़िब कर लूँ, और ये अगर मुझसे शादी कर ले तो मेरा यहाँ रहने का स्टेटस भी परमानेंट हो जाएगा, और ये पढ़ी लिखी भी है, इसके पास पैसा भी है, तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बेहतर गुजर जाएगी। एक एहसान फरामोश इंसान था, जिसकी बहन पर उसके मामू के बेतहाशा एहसानात थे, जिसने उसके भाई पर एहसानात किए और आपको उस पर भी एहसान करके उसको इधर बुलाया था। लेकिन वो शख्स जो है ग़ालिबन उसको वो ख़ातून जो है वो पसंद भी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो शक्ल सूरत की भी खूबसूरत थी। दिन रात जो है आप उठते हैं, बैठते हैं, हंसी मजाक करना, बातचीत करना, कहीं ना कहीं इंसान जो है वो राग़िब हो जाता है, और ये ग़ालिबन उसकी तरफ राग़िब भी हो गया था।
अब इसने तरीके तरीके से उससे गुफ्तगू लंबी करनी, उससे बातें करनी, और उसको उसके शौहर के आहिस्ता आहिस्ता उसने खिलाफ़ करना शुरू कर दिया बातों बातों में। वो समझ रहा था कि मैं उसको खिलाफ़ कर रहा हूँ, लेकिन वो शायद एक ऐसी औरत थी कि जिसके दिल में ईमान जो है वो ज़िंदा था। वो थोड़ा बहुत तो कहीं बहकी, लेकिन शायद इतना ना बहकी कि वो उसकी बातों में आ जाती। अब एक दिन वो कहते हैं कि उनका बेटा जो है वो यहाँ पर नहीं था, और मुझे भी कुछ काम था, काम के सिलसिले में मैं जो हूँ वो जा नहीं पा रहा था। मेरी जो बहू थी उसकी एक वैक्सीनेशन होनी थी, गालबन कोई वैक्सीनेशन थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और बच्चा जो है उसको उसने अपनी सास यानी कि उनकी बीवी के पास छोड़ा। तो उसने कहा कि मैं अपनी गाड़ी पे चली जाती हूँ, लेकिन उसकी गाड़ी जो है उस दिन स्टार्ट ना हुई। उस दिन ये हमारा जो दामाद है ये घर पे था, और उसको उन्हीं दिनों हमने एक गाड़ी लेकर दी थी जिस पे वो ऑनलाइन कैब वगैरह का काम कर रहा था, और गाड़ी वहाँ चलाता था और उससे पैसे कमाता था। वो कहते हैं कि हमने सोचा कि जहाँ ये लोगों को लेके जाता है तो चलो अपने घर की बहू है, इसको भी ले जाएगा और इसको डॉक्टर के पास जाके इसकी वैक्सीनेशन करा के ले आएगा। हमने इसको कहा, और उसने इसको गाड़ी में बिठा लिया। अब हमारी बहू जो है वो इसके साथ बैठ कर चली तो गई, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जो हुआ वो हमारे लिए इस कदर शर्मनाक है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। वो कहते हैं कि ये जो नौजवान है, ये इसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो है, ये अब उस लड़की की ज़ुबानी सारी बातें उन्होंने बताई कि ये इसको लेकर गया एक रेस्टोरेंट में, और इसने कहा कि पहले चाय शाय पी लेते हैं। तो उसने कहा कि मुझे मतलब बच्ची छोड़ी हुई है और देर हो जाएगी। तो वो कहती है कि मैंने तो मना किया, लेकिन उसने जब इसरार किया तो मैं चुप कर गई कि चलो कुछ नहीं होता। वो कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, सुबह से मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैं थोड़ी सी चाय पी लूँगा, मैं फ़्रेश हो जाऊँगा। तो वो कहती है मैं उसके साथ चाय पीने के लिए बैठ गई। कहती है चाय पीते पीते इसने अचानक ही अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दिया, और मैं एकदम से मैं चौंक गई, और मैंने एकदम अपना हाथ पीछे किया। तो उसने मुझे मतलब ये कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और तुम्हारा शौहर जो है वो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, और उसने उसके बारे में बड़ी अजीब अजीब सी बातें की। वो कहती है कि मुझे उसका ये अंदाज़ जो है ये बहुत बुरा लगा, और मैंने उसे कहा कि मुझे फ़ौरन तुम जो हो घर पहुँचाओ, वरना मैं खुद कोई टैक्सी करके जा रही हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, अच्छा चलो कोई नहीं, बुरा नहीं मनाना, और मुझे उसने गाड़ी में कहा कि बैठो। कहती है मैं आगे बैठने के बजाय मैं पिछली सीट पर जाके बैठ गई। वो भी चुप करके गाड़ी में बैठ कर उसने गाड़ी स्टार्ट की, और गाड़ी को वो आगे लेकर चला गया। और मैंने कहा कि वापसी की तरफ चलो। वो कहते नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा, मेरे कहे सुने को माफ़ करना। वो कहती है अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। इस बात को मैं अब चुप हो गई, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके बाद वो कहती है कि थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये गाड़ी जो है ये किसी वीराने से गुजर रही है, ये शहर से बाहर जा रही है। मुझे रास्तों का इतना इल्म तो नहीं था जिस तरफ हमें जाना था, लेकिन ये अब वीराना था। वो कहती है कि मैंने इसे कहा कि तुम गाड़ी यहीं पे रोक दो, लेकिन इसने गाड़ी नहीं रोकी। इसने कहा तुम्हें क्या हो गया, ये एक शॉर्टकट है, मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। उसके बाद वो कहती है कि मैंने एकदम शोर ढाल दिया, तो इसने गाड़ी को एक वीराने में जाके रोक दिया। वहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था। और उसके बाद वो कहती है कि मैं समझ गई कि कुछ गलत है। वो कहती है कि इससे पहले वो गाड़ी से निकलता, मैंने पीछे से दरवाज़ा खोला और मैंने पागलों की तरह पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो कहती मैं दौड़ती जा रही थी और ये मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा था। अभी ऐसा वक्त था शाम का कि बिल्कुल अंधेरा नहीं था। इसी असना में एक गाड़ी वहाँ से गुजरी। मैंने उनको मदद मदद के लिए पुकारा। वो गाड़ी तो नहीं रुकी, लेकिन उसी के पीछे एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी। वो कहती है कोई अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखनी थी। वो कहते हैं कि मैंने जब इशारा किया तो वो गाड़ी जो है वो पुलिस की फ़ौरन रुकी, और इसने जैसे पुलिस की गाड़ी देखी तो इसने फ़ौरन उल्टे पैर पीछे भागा। लेकिन मैंने जैसे पुलिस को मदद के लिए पुकारा और उनको मैंने समझाया कि मेरे साथ क्या हुआ है, उन्होंने इस गाड़ी को फॉलो किया, इस लड़के को फ़ौरन अरेस्ट किया और मुझे मेरे घर पहुंचाया। अब इनके बहू के जो अपने ससुर को उसने ये सारी कहानी सुनाई। अब वो ससुर कहते हैं कि जब हमारी बहू हमें ये सारी कहानी सुना रही थी तो वो कहते हैं कि मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई और मेरा दिल करता था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ, कि मैंने कितना भरोसा किया अपनी बहन के बच्चों पर। उसके बाद वो कहते हैं कि उसको फिर ज़ाहिर सी बात है कानून के मुताबिक जो उसको सज़ा मिलनी थी, और उसके तमाम कागजात जो है वो चीज़ें मैंने अपना कैंसिल कराई जो उसको हमने स्पॉन्सर किया था, और उसको वापस भेजा, और अपनी बहन को मैंने उसके कारनामे बताए। और यहाँ पर भी उसको सज़ा मिली। हमेशा के लिए वो यहाँ पर आ नहीं सकता था। कुछ 6 महीने की उसको सज़ा मिली, और उसके बाद उसको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। ये तमाम तर कहानी बताते हुए मलिक साहब कहते हैं कि मैं ये कहानी इसलिए चाहता हूँ लोगों से शेयर करें कि खुदा के लिए आप बेशक उनकी मदद करें, और ज़रूर मदद करें। इस्लाम हमें हुक्म देता है सिला रहमी का, और अपने रिश्तेदारों का हक़ तो सबसे पहले है। बाहर खर्च करने से पहले सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों को देखना होता है, लेकिन अपने घर में गैर महरम रिश्तों को मत बुलाइए। घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस जो है इसे पामाल मत कीजिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी शैतान जो होता है वो आपके बीच में आ जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।